okay, fine, categorical syllogism, and we have a content. First, we have the standard form of syllogism, that the structure of it, then the Venn diagram, and the rules and fallacies. First article is standard form of categorical syllogism, and this one is taken from the book Copy. You can see the front Copy Introduction to Logic, and what the authors say, I have told you that we have four categorical propositions. You can see that these are the four propositions. That is the statement A, universal affirmative; E, universal negative; I, a particular affirmative and particular negative. What is the syllogism? Syllogism is a deductive argument in which a conclusion is derived from the true premises. There is a structure, there is a pattern that some are the first one are the major premises, and then the supporting evidence that are minor premises, and you will draw the conclusion from this argument. This one is a called the deductive argument. So syllogism is what? Any deductive argument in which a conclusion is drawn from two premises, like that. No heroes are coward. कोई भी hero बुज़दिल नहीं है, कायर नहीं है. This one is a major. This one is a major premise. Some soldiers are coward. ये particular affirmative proposition हो गया और ये minor premises है. On the basis of these two, therefore he draw that some soldiers are not heroes. Why? Because they are the poor. वो बुज़दिल होते हैं. तो ये जो कंक्लूजन निकाला, ये हमने निकाला स्टैंडर्ड फॉर्म की बेसिस के ऊपर. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म? द मेजर प्रीमिसेस, द माइनर प्रीमिसेस, एंड द थर्ड वन इज conclusion. So categorical syllogism. So we have the four categories. We have the four. These are the standard. These are the standard form. You can I will highlight it in front of the screen that these are the structure, result structure, major premises, minor premises, and then finally the conclusion. And categorical syllogism, we have the four categories, that is A, I, and A, E, I, or O, which is named as universal affirmative, universal negative, particular affirmative, and particular negative. Moreover, we have to further divide all these things in that manner. That is, you can see the left hand side, the major term, the minor term, the middle term, and what is that? We have give with some examples. Like here is the premises. I have underlined that some soldiers are not heroes. Some soldiers are not heroes. So here the some soldiers are not heroes, and then the minor term and then the middle term. इसी इसमें अगर आप देखेंगे तीनों क्वेश्चन हमें सामने. नो हीरोज ये मेजर टर्म है. नो heroes are I will highlight it. I will highlight it. Yes, major term है. Some soldiers, मैं इसको highlight कर देता हूँ. Second one, some soldiers are poor. ये हमारा minor term, middle term है. And this one is what the conclusion. This one is conclusion. So you can see that major term predicate है. अच्छा, predicate subject and predicate. जैसे कि all politicians are liar. Here you say that all heroes are coward. Yeah, no heroes are coward. So here the heroes is a subject and coward is the predicate. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिलोजिज्म की ये स्ट्रक्चर है बेहतरीन. इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा. पेज नंबर 213 you have to be noted down. यहाँ पे completely clarity all the major term and the minor term and the middle term. So you have to be see clearly that all great scientists are college graduates. So what is this? This one is a major premises because here we are claiming some position. The second, some professional athletes are college graduate. This one is a supporting evidence. You can say that this one is a premises which is support the major premises. So you will mark as first one is the major premises, the second one is the minor premises, and the first one major premises, the second one is the minor premises, and therefore some professional athletes are great scientists. That is the conclusion. That is the conclusion. More we click on that, all
great scientists. Here the great scientists are the subject and college graduate are the predicate. In other term, all great scientists is a major term that is to be claimed, and college graduate is a middle term. In another proposition, professional athlete, this one is a minor term because we are supporting with the major term that is the great scientist. And the college grade graduate, these are the middle term. And the middle term is common in both the major premises and the minor premises. Major term that has to be proved. Minor term that is to be used in support or evidence. Therefore, what we conclude, we justify that there are some professional athletes, are great scientists, and some any minor terms are the major terms. They both are the same. Another example we have. Another example we have. All artists are egotists. All artists are egotists. It means first one is a major premises. Some artists are corporate, right? Okay, where we are, all artists are egotists. That is the major premises, and some artists are poetry. That is the minor premises. And conclusion is that some poets are egotists. Egotists means जो अनापरस्त होते हैं और poets means गरीब मुफलस, ठीक है, बहुत बिलो द लाइन जी रहे हैं. तो आर्टिस्ट गरीब होते हैं और आर्टिस्ट जो है वो बहुत अनापरस्त होते हैं. ये एक दो पोजीशन है. तो कहता है देखो सम पर्पल आर इगोटिस्ट, जितने भी मुखलिस गरीब हैं वो इगोटिस्ट होते हैं. तो ये जो उन्होंने एक इसको उसको किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे हम कि आर्टिस्ट जो हैं वो मिडिल टर्म है, यहाँ पे जो इगोटिस्ट हैं वो मेजर टर्म है, मेजर टर्म. अब इसी तरह सेकंड प्रेमिसेस में अगर हम देखें, सम आर्टिस्ट अगेन ये मिडिल टर्म हो गई. और जो पाइपुर है ये माइनर टर्म है, क्योंकि आर्टिस्ट आर्टिस्ट कॉमन हो गया, मिडिल टर्म है क्योंकि वो साबित कर रहे हैं कि आर्टिस्ट क्या है, ईगोटिस्ट है. तो ईगोटिस्ट साबित करना उनका मेजर टर्म था और माइनर उन्होंने सपोर्ट में यूज़ किया. और देखिए कंक्लूजन में मेजर और माइनर ही यूज़ होते हैं मिडिल टर्म में. तो देयरफॉर सम पर्पस आर ईगोटिस्ट. तो ये एक इसका स्ट्रक्चर है जो है हमने और से देखा पूरा स्ट्रक्चर. दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं. अगर आप देखें, ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट. तो उसमें जो ग्रेट साइंटिस्ट है वो मेजर टर्म है क्योंकि इसको हम साबित कर रहे हैं कॉलेज ग्रेजुएट. और तो सेकंड में देखें, प्रोफेशनल एथलीट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट. तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो माइनर है और कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो मिडिल टर्म है. मिडिल टर्म इसलिए इन द बोथ प्रेमिसेस दैट टर्म इज कॉमन. And conclusion is eliminating from these two that some professional athletes are great scientists. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको कुछ ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको. नो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एंड कमर्शियल वेसल्स, ये हमारा एक मेजर प्रेमिसेस हो गया. ऑल न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स आर वारशिप, ये माइनर हो गया. और कंक्लूजन, नो वारशिप और कमर्शियल वेसल. तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो मिडिल टर्म क्या है जो दोनों में कॉमन होगा, यानी न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये मिडिल टर्म हो गई. और कमर्शियल वेसल्स यही हमें साबित करना था, तो ये मेजर टर्म हो गई. और वॉरशिप क्या है, माइनर टर्म है. तो आपने देखें यही हम इसको प्रूव करेंगे, नो वॉरशिप्स आर कमर्शियल वेसल. तो ये बिल्कुल एक मैथमेटिकल लॉजिक के तहत अरेंज हो गया, इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन गया. अब हम इसके फॉर्मल नेचर देखते हैं सिलोजिस्टिक की, वो क्या है. देखें एक और एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन. जितने भी ग्रीक्स हैं वो ह्यूमंस हैं, ठीक है. और ऑल एथेनियंस आर ग्रीक, जितने भी एथेंस के रहने वाले थे वो ग्रीक थे. तो कंक्लूजन हो गया कि ऑल एथेनियंस आर ह्यूमन. तो ये हमने कॉमन अगर हम देखें अगेन तो ग्रीक जो है मिडिल टर्म हो गया दोनों में, सही. और माइनर प्रेमिसेस एथेनियन हो गया और मेजर प्रेमिसेस जो हमें प्रूव करना था वो क्या है, ह्यूमन. तो देखें ये पूरा मॉड इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो गया. इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने है, ऑल रैबिट आर वेरी फास्ट रनर. तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें तो रैबिट और फास्ट रनर की बात हो रही है. तो रैबिट जो है वो मेजर हो गया, मेजर टर्म है. और फास्ट रनर जो है ये मिडिल टर्म है.
फिर सम हॉर्सेस आर वेरी फास्ट रनर, तो फास्ट रनर यहाँ पे अगेन ये मिडिल टर्म हो गई, और जो सम हॉर्सेस आर, तो ये माइनर टर्म है। और प्रूफ कैसे करते हैं कि माइनर टर्म पहले आएगी, यानी हॉर्सेस माइनर टर्म है और रैबिट जो है मेजर टर्म है, तो ये जस्टिफाई हो गया सम हॉर्सेस आर रैबिट। तो दैट्स हाउ द मेजर, माइनर एंड द मिडिल टर्म आर वर्क, और ये पूरा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया। तो हम एक कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट है और उसको फिर हम इसी तरीके से अरेंज करें। देखिए, नो मेडिसिन दैट कैन बी परचेज विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। अब ये एक हो गई, एक प्रोपोजिशन हो गया, ठीक है। एक प्रोपोजिशन क्या है कि नो मेडिसिन दैट कैन बी परचेज, तो ये हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव, ये बात तो पता हो गई। अब इसमें मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, ये भी हम देखते हैं। पहला दो प्रेमिसेस आपने इसको अंडरलाइन कर दिया कि जितनी भी मेडिसिन है वो विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए, और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास प्रेमिसेस है वो क्या है, सम नारकोटिक्स आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। अब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये मिडिल टर्म हो गई हमारी। और उसके बाद मेडिसिन जो है वो हमारा मेजर टर्म है। और अब तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सम नारकोटिक्स आर मेडिसिन, तो देखिए माइनर जो है वो नारकोटिक्स था और मेजर जो था वो मेडिसिन था, और यहाँ पे आपके सामने इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। तो इसी तरह एक और अगर हम देखते हैं 8, ये हम 8, अगर आपको पॉइंट नंबर 8 नज़र आ रहा है जिसको मैंने बोल्ड किया है, तो इसको भी हम इसी तरीके से ज़रा देखते हैं। नो इंटेलेक्चुअल्स आर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, ये एक बात होगी हमारी कि जो इंटेलेक्चुअल हैं वो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं है। तो ये बात तो मेजर प्रेमिसेस हो गया ये पूरा, और ये वैसे देखा जाए तो कौन सा प्रपोजिशन है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है। फिर अगली बात, नो शाय एंड रिटायरिंग पीपल आर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। अब ये एक और प्रेमिसेस आ गया। तो फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल्स जो है वो हमारा मेजर टर्म है, और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन ये दोनों जगह मेंशन है, ये मिडिल टर्म हो गई हमारी। तो फिर माइनर टर्म हमारी क्या होगा, शाय एंड रिटायरिंग पीपल। तो अब कंक्लूजन क्या बना कि इंटेलेक्चुअल्स आर शाय एंड रिटायरिंग पीपल। तो देखा आपने, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म दोनों में कॉमन थी, वही बात कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी, बी और बी कॉमन था, दोनों मिडिल टर्म थे, तो एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल मैथमेटिकली ये प्रूव हो रहा है। इसी तरह इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये 10th नंबर की जो एग्जाम्पल है मैंने इसको बोल्ड करा है आपके सामने स्क्रीन पे। ऑल न्यू ऑटोमोबाइल आर इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये पहला प्रेमिस हो गया सिलोजिस्टिक रीजनिंग में, जिसको हम क्या कहेंगे, मेजर प्रेमिसेस। ऑल न्यू ऑटोमोबाइल्स आर स्टेटस सिंबल, ये सेकंड हो गया यानी माइनर प्रेमिसेस। फिर कंक्लूजन देखते हैं, देयरफॉर सम इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर स्टेटस सिंबल, ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब जरा टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट में जो न्यू ऑटोमोबाइल है, जो न्यू ऑटोमोबाइल है ये हो गया हमारे पास मिडिल टर्म, ठीक है। कह रहे हैं ना कि ये जो है ये क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर इसको अंडरलाइन करें तो ये कहलाएगा मेजर टर्म। अब सेकेंडली देखें आप, अनदर प्रेमिसेस यू हैव ऑल न्यू ऑटोमोबाइल्स आर स्टेटस सिंबल, तो यहाँ ऑटोमोबाइल ये मिडिल टर्म हो गया। आर स्टेटस सिंबल, तो जो स्टेटस सिंबल का वर्ड है ये क्या है, ये आपका माइनर टर्म हो गया। कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर सम इकोनॉमिकल मीन्स और ट्रांसपोर्टेशन आर स्टेटस सिंबल, तो इकोनॉमिकल मीन्स को उन्होंने साबित कर दिया कि ये स्टेटस सिंबल है। तो बहुत सिंपल है, यानी मेजर टर्म, माइनर टर्म, और उसके बाद फिर मिडिल टर्म हमने आइडेंटिफाई भी करा। अब हम अगला आर्टिकल, जॉन वेन एक इंग्लिश फिलोसफर लॉजिशियन रहे हैं, और उन्होंने इसी को प्रेजेंट किया डायग्राम के जरिए, और उन्होंने 3 सर्कल्स बनाए, ठीक है। 3 सर्कल्स बताए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को साबित करने के लिए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड द एम, मतलब मिडिल टर्म हो गया। तो देखें किस तरह से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। तो ये देखें आपके सामने एक डायग्राम है, जो रेड से सर्कल है ये सब्जेक्ट है, जो पी से सर्कल है वो प्रेडिकेट है, और जो ग्रीन से सर्कल है वो मिडिल टर्म है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक मेजर टर्म है, एक माइनर टर्म है और एक मिडिल टर्म है। तो हम स्टेटमेंट को इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं।
यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि ये देखिए, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। अब जरा इसको हम वेन डायग्राम में किस तरह से प्लॉट करेंगे, तो ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो यहाँ पे जो है वो एक, तो डॉग्स आर मैमल, तो मैमल यहाँ पे मिडिल टर्म हो गया, डॉग मेजर टर्म हो गया, ठीक है। ऑल कैट्स आर मैमल, मैमल मिडिल टर्म है, कॉमन है, तो कैट्स क्या है, माइनर टर्म हो गया। तो आपने देखा 3 सर्कल बन गए, मेजर टर्म, माइनर टर्म, और जो ग्रीन लाइन है सेंटर में वो है मैमल्स, यानी सेंटर कॉमन। तो आपने एक को कैट सर्कल कर दिया, एक को डॉग कर दिया, और दोनों में जो है वो कुछ कॉमन है, तो उसको सर्कल। तो यहाँ पे ये साबित कर रहे हैं कि ऑल डॉग्स आर मैमल, अच्छा ऑल कैट्स आर मैमल, देयरफॉर ऑल कैट्स आर डॉग। तो इन्होंने, ऐसे तो ये इनवैलिड मतलब स्ट्रक्चर तो वैलिड है, मगर ये साउंड नहीं है, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट है। तो ये एक वेन डायग्राम हम देख रहे हैं किस तरह से ये प्लॉट होती है। तो आपने देखा ये इन्होंने कैट्स को जो है वो शेड कर दिया, लाइन कर दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको छोड़ दिया खाली। इसी तरह एक और देखते हैं हम, ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो और सम आर्टिस्ट आर पोइटिस्ट, तो ये देखें पोइटिस्ट और इक्विटिस्ट और आर्टिस्ट, आर्टिस्ट दोनों में कॉमन था, तो ये इन्होंने इसको शेड करके निकाल दिया यहाँ पे। इसी तरह एक और है, ये देखें, ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट, तो यहाँ पे ग्रेट साइंटिस्ट कॉलेज ग्रेजुएट। some professional athletes are college graduate, so here the college graduate and the college graduate is a middle term, okay, here is a common, and the great scientists are the major term, and the professional athletes are the minor term. तो कंक्लूजन आपने देखा होगा कि देखिए, प्रोफेशनल एथलीट यानी माइनर, और ग्रेट साइंटिस्ट यानी मेजर। ये तो हमारा स्ट्रक्चर। अब डायग्राम के जरिए देखिए, एक प्रोफेशनल एथलीट का सर्कल है और एक ग्रेट साइंटिस्ट का। अब वो कहते हैं ऑल, तो सारे ग्रेट साइंटिस्ट को हमने शेड कर दिया, लेकिन वो कह रहे नहीं, इनमें से कुछ ऐसे हैं। तो उसमें से जो कुछ वाला पोर्शन था वो कौन सा था, वो कॉलेज ग्रेजुएट का था, जिसको हमने फिलअप नहीं किया, कलर नहीं किया, जो कि आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं। और जो है वो जो ग्रीन पार्ट है वो प्रोफेशनल एथलीट का, वो कॉमन है, यानी प्रोफेशनल एथलीट कॉलेज ग्रेजुएट कॉमन कर दिया, लेकिन कुछ कॉलेज ग्रेजुएट प्रोफेशनल नहीं है, तो उसको इसलिए हमने कलर नहीं किया। तो ये जॉन वेन डायग्राम इस तरह से इसको प्लॉट कर रहा है, इसी स्ट्रक्चर को डायग्राम के जरिए जो है वो प्रेजेंट करता चला जा रहा है, जिसको विजुअल लॉजिक भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए हैं कि people whose attention is easily distributed when they are working, successful people, people who are keenly interested in their work। तो इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, वो एक कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हैं जो अपनी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। तो अब इसके जॉन वेन डायग्राम इस तरह से काम करती है, और ये जॉन वेन का बायोग्राफी मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ब्रिटेन थे, 1834 1923 उनका टाइमलाइन हो गया, और जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, ठीक है, लेक्चरार रहे हैं, फेलो रहे हैं कॉलेज में, और उन्होंने लॉजिक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आपने स्कूल लाइफ में मैथ्स के अंदर भी जॉन वेन डायग्राम पढ़ी है, जिसमें वो सब सेट और कॉमन सेट और इंटरसेक्शन वो ड्रॉ करते थे वेन डायग्राम के जरिए, तो वो यही जॉन वेन है। और फिर आगे जाके गॉटफ्रेड लेibniz एक फिलोसफर भी हैं और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट रहे हैं, तो उन्होंने जो है वेन डायग्राम का जो है भी 17वीं सेंचुरी में बहुत असर पड़ा, प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर जो है ये यूज़ होती है। तो ये तो हमने जो है वो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल MSP, और उसमें नो SSP का कुछ पार्ट सर्कल खाली छोड़ दिया, देयरफॉर नो SSP, और यहाँ कंक्लूड कर दिया। सो